Good morning, respected resource person, Professor Yogesh D. Brahmankar, Head Incubation and Entrepreneurship, SCEI, Symbiosis Center for Incubation and Entrepreneurship, Dean YCT, Engineer Dinesh Gupta, HOD Electrical Department, Engineer Lamneesh Talwar, various faculty members and participants. The Department of Electrical Engineering was established in Yogananda College of Engineering and Technology in the year 2013. The department runs various activities so that the faculty members and participants get involved in addition to their academic curriculum. And today's session is one of those activities. The session of today is Angel Investment VC funding opportunity for early stage entrepreneurs. It is one of the activities that the college has organized. Now I would like to invite HOD Electrical Department Engineer Lamneesh Talwar for the welcome address. Thank you, Wesley. Respected in charge Director YCT Engineer Dinesh Gupta ji, the faculty members of Electrical Engineering Department and the students of Electrical Engineering Department. Today we all gathered here to evaluate one session on angel investment for making the startups and innovations. The Yogananda College of Engineering and Technology, under the dynamic leadership of in charge Director Engineer Dinesh Gupta sir, also the President of IIC Cell, various activities are performed, and under this IIC calendar activity, the Department of Electrical Engineering today also organized another activity. In that activity, you all been get aware that how you can start an investment, how you can start your entrepreneurship, and how to start your startup. So every startup or every entrepreneurship, you require certain funding. Because the time has changed. If you go beyond certain time, let us suppose if you go beyond 5 to 10 years back, the generation rate of engineers are very, very low, but the consumption rates of engineers is very, very high. The demand is very, very high. You all get your job in government as well as the private sectors. But nowadays, the total reforma has been changed. Nowadays, you can say that the generation of engineers day by day increasing. Many institutes, many engineering colleges has displaying with various courses, and number of engineers can be graduated every year. But the jobs that you are all absorbed is very, very low. So it's the time that you will all get an idea and you will start your own venture, you will start your own startup and entrepreneur, so that instead of job seeking, you will become as job creators. So every new venture or every new entrepreneur, you should require certain amount to invest on that thing. So today's lecture is basically the main focus on that thing, that how you can plan for your startup and what is the angel investment, how you can invest in your plan. I hope you can get benefited after this talk. So not much wasting your time. I request all the participants to be please go through this webinar and jot down some important points. So these points will be help you in your future when you have to go for entrepreneurship. So this is all from my side. Now I request Officiating Director YCT Engineer Dinesh Gupta sir to say a few words about this seminar. Thank you so much. Thank you, Lamneesh. Good morning. Students, today the topic is angel investment and how you will guard the funding to start your startups or entrepreneurs. First of all, I would like to congratulate the electrical department, HOD and faculty members of this department for conducting this beautiful lecture on a beautiful session. Students, this activity, the department is conducting this activity under IIC. What is IIC? That is Institutions Innovation Council. It is a Government of India initiative, and it is established in the year 2019. This initiative was taken by MHRD, that is Ministry of Human Resource and Development. Now it is clubbed with the Ministry of Higher Education. And why government is taking these initiatives under IIC?
बिकॉज देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये जो इस्टेब्लिश हुआ IIC 2019 और हमारा कॉलेज जो हमने अप्लाई किया दैट इज 2020 में हमने अप्लाई किया था। दैट इज देखो इसमें IIC में 4 क्वार्टर्स होती है, एक क्वार्टर 3 मंथ्स का रहता है और हमने किया ऑलमोस्ट सेकेंड क्वार्टर के बाद और उसके बाद इसकी रैंकिंग रहती है कि इंस्टीट्यूशंस ने कितना काम किया और हर इंस्टीट्यूशंस की एक रैंकिंग रहती है। तो जब हमारा IIC 3.0 था तो हमारा जो रैंक था JNK में 3rd रैंकिंग थी हमारे कॉलेज की अमंग ऑल द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज ऑफ JNK। और इस साल हमारी जो IIC जो 3.0 की रैंकिंग थी वो थी, अभी IIC 4.0 चल रहा है, मीन्स 4th ईयर है इस IIC को। तो जो हमारी IIC 3.0 की रैंकिंग थी वो थी हमारी 2nd रैंकिंग थी अमंग ऑल द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज ऑफ जूनियर टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब IIC, अब आपको नाम से ही पता चल रहा है, IIC हो गया इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिल। ये काउंसिल है जो इंस्टीट्यूशंस के द्वारा बनाई गई है। क्यों बनाई गई? इनोवेशंस के ऊपर काम करने के लिए। और ये मेनली 4 थीम्स के ऊपर काम कर रही है। 4 थीम्स इसमें कौन कौन सी हैं? पहला थीम आ गया इनोवेशन, दूसरा आ गया एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप, एक ही चीज आ गई जो जिसके ऊपर ये आज बात हो रही है। देन तीसरा आ गया आपका दैट इज इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर एंड 4th वन इज पेटेंट। देखो जब तक आप कोई भी स्टार्टअप आप इस्टेब्लिश करते हो या अपना एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइज आप इस्टेब्लिश करते हो तो हमारे पास इनोवेटिव आइडियाज होने चाहिए। आज एक हमें किराने की दुकान ही खोलनी है तो उसके लिए हमारे पास इनोवेटिव आइडियाज नहीं होंगे तो हम किराने की दुकान नहीं खोल सकते। तो वो आज भी फेल है, कल भी फेल है। आज आपने देखा बड़े बड़े आपके जो है ऑनलाइन बिजनेस आपका जो है वो मोस्टली आप देख रहे हो अमेजॉन आ गया, फ्लिपकार्ट है या दूसरी जो कंपनीज हैं जो आपकी ई-कॉमर्स कंपनीज हैं जो ऑनलाइन बिजनेस पे आ गई हैं। और अमेजॉन वर्ल्ड की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है। तो वो कैसे काम कर रही है, या दूसरी जो आपके दूसरे बड़े बड़े जो आपके ई-कॉमर्स कंपनीज हैं जो आपको आपके डोर स्टेप पे आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, और वो भी चीपर प्राइसेस पे। और चीपर प्राइसेस भी होंगे, आपको सर्विस भी बढ़िया होगी और क्वालिटी भी आपको बढ़िया होगी उसमें। तो जब आपको अपना एंटरप्राइज आप कोई भी आप इस्टेब्लिश करना है तो हमारे पास इनोवेटिव आइडियाज होने चाहिए। हमें किस तरह का एंटरप्राइज या कैसे हमें उसको इस्टेब्लिश करना है। देखो सबसे पहले इसमें मैंने आपको कहा कि इनोवेशन तो रहती है, बिना इनोवेशन के एंटरप्राइज हम नहीं खोल सकते। उसके बाद ये जो आपका एंजल इन्वेस्टमेंट आ गया, हाउ यू विल गेट द फंडिंग कहाँ से आपको मिलेगी। और इसमें बहुत सारी ऐसी जो डिपार्टमेंट्स हैं जैसे बैंक्स हैं जो आपको फंडिंग प्रोवाइड करेंगे। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जैसे इंक्यूबेटर। उसके बाद आ गया 3rd वन इज इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर। तो इंक्यूबेटर क्या होता है? ये एक सपोर्ट सिस्टम होता है। जैसे मान लिया इंक्यूबेटर आपने ऐसे मेडिकल उसमें आपने इंक्यूबेटर का नाम सुना होगा कि न्यू बॉर्न बेबी होता है, अगर उसको कोई हेल्थ इश्यूज होते हैं तो उसको इंक्यूबेटर पे हम रखते हैं, वो आ गया आपका मेडिकल इंक्यूबेटर। तो वो आ गया लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इसी तरह से हमारे स्टार्टअप्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इंक्यूबेटर्स क्या हो गए? जो सपोर्ट सिस्टम्स हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं सपोर्ट सिस्टम्स किसके लिए? दैट इज आपके इंटरप्राइज या आपके जो स्टार्टअप्स हैं, ताकि आपने अपना कोई इंटरप्राइज आपने शुरू किया या अपना स्टार्टअप शुरू किया है तो फेल ना हो जाए। तो सबसे पहले देखो इसमें अगर कोई भी आप मान लिया अपना स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, स्टेट में अगर खोलना चाहते हैं तो उसके लिए पहले सबसे पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, वो DIC में जाती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है। और अगर मान लिया उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कोई चेंजेस उसने करवानी है, कौन सा आप इंटरप्राइज या कौन सा आप वो खोलने जा रहे हो, स्टार्टअप खोलने जा रहे हो, वो डिपेंड करता है कि वो उसकी फिजिबिलिटी, उसका सक्सेस रेट क्या होगा आपकी स्टेट में, आप किस तरह का आप स्टार्टअप खोलने जा रहे हो। उसके बाद आपको इवेंट ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये इंक्यूबेटर में पूरा सपोर्ट सिस्टम रहता है, आपको ट्रेनिंग से लेके फंडिंग कहाँ से मिलेगी, ट्रेनिंग कैसे होगी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनेगी। और उसके बाद अगर आपने बिजनेस स्टैब्लिश कर दिया तो उसके बाद आपको एक्सेलरेटर की मीन्स उस बिजनेस को एक्सेलरेट करने के लिए भी गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी। तो इसीलिए इसकी पहले जरूरत क्या पड़ी? देखो कोई भी चीज होती है उसकी जरूरत क्या पड़ी, वो चीज होती क्या और उसकी जरूरत क्या पड़ी। IIC की जरूरत क्या पड़ी? सबसे पहले मैंने कहा 2019 में एस्टैब्लिश हुआ, क्योंकि देखो चाइना को वर्ल्ड फैक्ट्री बोला जाता था
बट आज अगर आज आप देख रहे हो तो आज उसको पूरा वर्ल्ड जो है वो इंडिया को एज ए वर्ल्ड फैक्ट्री के रूप में देख रहा है कि जो एक्सपेक्टेशंस पूरे वर्ल्ड को चाइना से थी, वो अब एक्सपेक्टेशन पूरा वर्ल्ड जो है वो दुनिया से एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये चीज़ें हमें इंडिया सप्लाई करेगा। तो वो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आपने देखा iPhone 14 जो है वो आपका हो गया है, अनाउंस हो गया है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया में होगी, चाइना में नहीं होगी। उसकी जो लेटेस्ट आपका इसका एप्पल का फ़ोन आया है। और इसका मैंने आपको कहा, देखो हमारा जो कंपटीशन था, इसमें जो कंपटीशन था वो चाइना के साथ था, क्योंकि चाइना इतना आगे निकल चुका था इनोवेशंस में, दूसरा स्टार्टअप्स में, हर फील्ड में चाइना, एक फील्ड में नहीं ऑलमोस्ट हर फील्ड में चाइना इतना आगे निकल चुका था कि हमारा कंपटीशन ही सिर्फ चाइना के साथ था। तो वो कंपटीशन हम तभी कर सकते थे अगर हम इन 4 चीज़ों के ऊपर काम करते, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MHRD ने इन 4 चीज़ों के ऊपर ही पूरा ध्यान दिया। दैट इज इनोवेशन, उसके बाद आ गया स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप, देन आ गया उस एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट सिस्टम इंक्यूबेटर से आ गया, और उसके बाद आ गया पेटेंट। क्योंकि देखो पहले हम इंडियंस क्या करते थे, हमने बड़ी इनोवेशंस की, हमने इंडियंस ने बहुत इनोवेशंस की, बट पेटेंट नहीं करवाए। जब पेटेंट नहीं करवाए, उसको इन्वेंट किया इंडियंस ने, बट वो नाम किसी और का चल रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल मैंने पिछली क्लास में भी दी थी, जैसे ऑप्टिकल फाइबर है, बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, वो इंडियन है, एक सरदार जी है जिन्होंने ऑप्टिकल फाइबर इन्वेंट की है, बट मोस्टली लोगों को पता ही नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडियंस ने वो की हुई हैं, इन्वेंट की हैं, या जो बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जो इंडियंस जो रिसर्चर्स हैं, जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, उन्होंने वो किया, बट नाम किसी और का चल रहा है, क्योंकि उन्होंने पेटेंट नहीं करवाया, पेटेंट किसी और ने करवा दी। अब पेटेंट का देखो फायदा क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है पेटेंट का। कोई भी चीज़ आप इनोवेशन करते हो, जैसे मैं एक आपको एक और एग्जांपल देने जा रहा हूँ, आपने नाम सुना होगा, दैट इज बम्बर V2 का, जो इंडिया परचेज करने जा रहा है, दैट इज अमेरिका से, US से, दैट इज द मोस्ट एडवांस बम्बर, और उसका भी एडवांसमेंट आ गया, दैट इज B21 आने वाला है, V2 का और एडवांस वर्जन आ रहा है B21। उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, और वो रडार्स के एरिया में उसका जो चांसेस है रडार्स के एरिया में आने के, दैट इज 0.0001% उसके चांसेस है बनने, बट उसका भी एडवांस वर्जन अमेरिका बनाने जा रहा है, दैट इज B21। उसके ऊपर उसने खरबों रुपया उसने रिसर्च के ऊपर लगा दिया है, और जब उसने खरबों रुपया रिसर्च के ऊपर लगाया है, तो उसका अगर टेक्नोलॉजी किसी और को मिल गई, या किसी टेक्नोलॉजी किसी और ने मान लिया ले ली टेक्नोलॉजी, तो वो अगर बनाना स्टार्ट कर दिया तो अमेरिका को तो नुकसान हो गया। तो वो क्या करेगा, उसका पेटेंट अपने पास रखेगा, हजारों बम्बर ऐसे तैयार करेगा, और अरबों डॉलर्स के वो आगे सेल करेगा, फिर जाके उसको प्रॉफिट होगा। तो इसलिए कोई भी हम मान लिया इनोवेशन करते हैं, कोई भी इनोवेशन है, तो उसका हम पेटेंट करवाते हैं, ताकि वो राइट्स हमारे पास होते हैं। जैसे एप्पल फ़ोन की मैंने बात की, तो एप्पल फ़ोन के मान लिया अगर मैं कोई नया वो निकालता हूँ, तो उसका पेटेंट मेरे पास होगा, कोई दूसरी कंपनी उसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती। अगर कोई दूसरी कंपनी मैन्युफैक्चर करेगी, तो इसका एप्पल का i14 आने से पहले दूसरी कंपनी का दूसरा फ़ोन आ जाएगा, और वो कंपनी नुकसान में जाएगी। तो इसलिए वो पेटेंट किया जाता है। तो इसलिए ये 4 थीम्स के ऊपर काम कर लिया, और इसमें बहुत सारा काम भी किया। अभी 3-4 दिन पहले आपने सुना होगा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का रिजल्ट निकला है, और उसमें NIT श्रीनगर के बच्चे जो हैं वो उसमें फर्स्ट प्राइज लेके आए हैं नेशनल लेवल पे। और जो उसके अलावा जोधामल स्कूल के एक बच्चा है जिसने आगे भी बड़े अवार्ड जीते हुए हैं, तो वो एक जूनियर लेवल स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जूनियर लेवल उसने जोधामल के बच्चे ने, उसने अभी भी इसमें यूट्यूब पे आपका वो ये जो आपका IAC के नाम से वो होगा, जहाँ AICT की जहाँ उसके आज अभी भी यूट्यूब पे वो वीडियो पड़ी होगी, वो आप देख सकते हो। उस लड़के का डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के साथ इंटरेक्शन हुई, वो मैं देख रहा था। जोधामल स्कूल का अगर जम्मू का वो बच्चा कर सकता है, तो आप भी कर सकते हो, सब लोग कर सकते हैं, या NIT श्रीनगर के कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हो। 1 लाख का प्राइज उसको मिला है, जो NIT श्रीनगर की टीम ने जो जीता है, और 1 लाख का प्राइज वो उस छोटे बच्चे को मिला जो जोधामल स्कूल का बच्चे जिसने वो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जूनियर लेवल का जीता। तो आप भी कर सकते हो। अगर इनोवेशन नहीं है आप में, तो जिस बच्चे के पास इनोवेशन नहीं है उसको तो इंजीनियरिंग करनी नहीं चाहिए। जैसे रवनीश ने कहा, पहले डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी, बट अब सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। और दूसरा आपको ये देखना चाहिए कि क्या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप कर रहे हो, कोई भी आपकी, देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कोई भी ब्रांच, ठीक है, किसी भी ब्रांच में आप
इंजीनियरिंग करते हो, जब कोई भी कोर्स आप करते हो, इंजीनियरिंग छोड़ के कोई भी दूसरा कोर्स करते हो, तो हर ब्रांच में, हर लाइन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आपकी लाइन में भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट टाइम के साथ आपने अपने आप को चेंज करते रहना। हमने देखा आपके जो सीनियर्स हैं, जो पास आउट्स हैं, उसमें से हमने कुछ बच्चे ऐसे देखे हैं जिन्होंने खाली एक दो कंप्यूटर कोर्सेज करके वो IT सेक्टर में चले गए। उन्होंने पाइथन किया, उन्होंने जावा किया और वो IT सेक्टर में उन्होंने अपनी एंट्री कर ली है, क्योंकि IT सेक्टर में इतनी रिक्वायरमेंट है इंडिया में। IT सेक्टर में आप इमेजिन नहीं कर सकते, खाली इंडिया में छोड़ो, पूरी दुनिया में IT सेक्टर में इतनी रिक्वायरमेंट है। और इंडियन नाम सुन के ही जो इंडियन IT प्रोफेशनल्स हैं हाथों हाथ उनको ले लेते हैं। जर्मनी ने स्पेशल रिक्रूटमेंट की थी इंडियन जो आपके IT प्रोफेशनल्स हैं। आप किसी कंट्री में चले जाओ, जो टॉप की जितनी कंपनीज है IT प्रोफेशनल्स इंडियन बैठे हुए हैं, हर कंट्री में आप देखो, क्योंकि जो IT का जो देखो पहले हब माना जाता था, वो हम बैंगलोर को, जो पुणे को ही कहते थे कि भाई यही दो हैं आपके IT हब हैं, बट 5 में से अगर फास्टेस्ट IT सिटी जो ग्रोइंग सिटीज हैं उसमें से 4 इंडियंस हैं। 4 इंडियन सिटीज हैं जो 5 फास्टेस्ट ग्रोइंग IT जो सिटीज हैं, और उसमें से नंबर 1 जो है वो बैंगलोर है, वो बैंगलोर रहेगा, ठीक है। देन उसके बाद पुणे है, मुंबई है, उसके बाद आपका आ गया हैदराबाद, आ गया तेलंगाना का हैदराबाद आ गया, उसके बाद गुड़गांव इज द वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी। वैसे भी आपका अभी आप अगर देखोगे तो डाटा देखोगे तो फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी आपका जो है वो गुड़गांव आपका आ रहा है। तो अब आपको उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ेगा जो रिक्वायरमेंट्स हैं। और वैसे भी मान लिया आप कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं, आपने इंटर्नशिप्स किया, आपने अगर अच्छी तरह से इंटर्नशिप्स की होगी, चाहे जहाँ पे भी की, तो आपने देखा जो आपका कंट्रोल मैकेनिज्म है वहाँ पे सारा वो आपका आपने अगर स्काडा सिस्टम देखा होगा जहाँ पे नरवाल में जाके, तो पूरा आपने देखा वो PLC बेस्ड स्काडा, PLC को खत्म हो गया तो स्काडा पे आ गया, तो वो कितना एडवांस सिस्टम है, वो फ्रांस टेक्नोलॉजी से इन्होंने डेवलप किया हुआ है, कितना एडवांस सिस्टम है। और आने वाला टाइम यही है आपका स्मार्ट ग्रिड की आप बात कर रहे हैं, आप देख रहे हो कि आपके जो स्मार्ट मीटर्स लग चुके हैं आपके, अब आपके कितना आप इलेक्ट्रिसिटी आपने वो कंज्यूम करना है, रिचार्ज पहले करवाओ, चलो अभी तो वो स्टार्ट नहीं हुआ, बट आने वाले टाइम में वो भी हो जाएगा। जैसे हम अपनी मोबाइल बिल्स हम रिचार्ज करते हैं, भाई इतने का तो इतनी इलेक्ट्रिसिटी हम खर्च करेंगे, तो बट अब वो तो आ ही है ना, आप इलेक्ट्रिसिटी जितनी वो कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, उतना आपको बिल आ रहा है आपको। तो वो ऐप डाउनलोड करोगे, आपकी डेली आपकी यूनिट्स कितने कंजप्शन है वो भी आपको पता चल जाएगा कि आज की मेरी डेली यूनिट्स कितने कंज्यूम हुए हैं, और उसका बिल क्या होगा, उसको आपने एट द रेट ऑफ 3.5 जो भी हमारे चार्जेस हैं, पर जो चार्जेस हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करो, आपको पर डे आपको पता चल जाएगा कि आज का मेरा जो बिल है वो इतना आया, महीने का मेरा बिल इतना आएगा। तो अब आप देख रहे हो कि जहां पे कोई भी सेक्टर आप देख रहे हो, इलेक्ट्रिकल में अगर आप देखें, देखो आपका एनर्जी जो आपका रिन्यूएबल एनर्जीज है उसमें बड़ा काम हो रहा है, तो आप रिन्यूएबल एनर्जीज में जा सकते हो। आप इंडिया में सबसे बड़ा जो आपका सोलर प्लांट है वो इंडिया में, और आने वाले एक सोलर प्लांट है, बहुत सारे सोलर प्लांट्स हैं जो इंडिया में आपके अभी बन रहे हैं, जब बनके तैयार होने वाले हैं, तो सोलर के ऊपर बड़ा काम हो रहा है इंडिया में। अभी मेरे ख्याल से लेह में या उसमें भी एक सुनने में आया कि सबसे बड़ा तो वही रहेगा, राजस्थान में रहेगा, बट दूसरे नंबर वर्ल्ड का फ्लोटिंग सोलर जो आपका वो है वो मध्य प्रदेश में, वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है वो मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश करने जा रही है। विंड एनर्जी का अगर हम देखें तो नीदरलैंड में हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे कि सबसे ज्यादा विंड एनर्जी का वो नीदरलैंड, आयरलैंड और कंट्रीज है जहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो विंड एनर्जी से वहाँ पे होती है। तो वहाँ अगर आप साउथ एरिया में जाओगे तो कोस्टल एरियाज में वहाँ विंड एनर्जी से बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है, इलेक्ट्रिकल जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। आप सोलर से भी आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो। और जो स्मार्ट जो ग्रिड्स बन रहे हैं, ये स्मार्ट ग्रिड्स हैं क्या, आप मान लिया जितनी आप अपने घर में जितनी आप सोलर से या किसी और सोर्स से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो, आपकी जितनी आप कंज्यूम करोगे बैलेंस ऑफ द एनर्जी जो है वो ग्रिड को जाएगी और उसका गवर्नमेंट जो है वो आपको पे करेगी। तो आने वाले टाइम में जो आपका होने जा रहा है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Thank you so much, sir, for your kind words. Now, I would like to invite the resource person for today's session, Professor Yogesh D. Brahmankar, to deliver his talk on
angel investment VC funding opportunity for early stage entrepreneurs. On understanding market. So let me just recap what we discussed yesterday. So what was our yesterday's focus? The focus was on how do I write product description, or how do I write service. In writing product or service description, what are the aspects I need to focus? What are the things I need to look at? When I mean by, especially by when we say understanding market, what is market? Understanding market for my product and service. So market is what? Market is customers and competitors. Market is customers and competitors. And with that perspective, how do I understand my customers or potential customers? How do I understand is there any competition, or if my product is completely new or innovative, what kind of things I am going to compete with? That will be the focus of this discussion. I will also discuss a couple of tools which can be used for understanding customers or understanding market. So let me share my presentation and then we will go ahead. Just a minute here. Understanding market. Understanding market means understanding my customers and competitors. So one line definition of market, if somebody asks you, market means customers and competitors. It is full of your customers, potential customers, all the customers who are not your customers, who are buying some other product, or existing products are there in market, and competitors who may be your direct competitors or the existing players in market, or some of them would be your potential competitors that they may come into this particular field. So it's not so simple as we see, it's very complex. Yeah, so let me take you ahead. So we started yesterday with that.